के माना बेजुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं. Born in the hills, and I was lived amongst nature, and so मेरा हमेशा से कनेक्शन रहा है एनिमल्स के साथ, फॉरेस्ट के साथ, रिवर्स के साथ. और तो रॉकस्टार की एक लाइन है कि टूटे दिल से संगीत निकलता है. सो इज इट रियली ट्रू? दिल जब टूटा होगा तभी संगीत अंदर से निकलेगा. इमेजिन कर सकते हैं अगर कोई आदमी परेशान है एज एन आर्टिस्ट, यू कैन इमेजिन यार कि अगर मैं वहाँ होता तो मुझे कैसा लगता. मदद भी करते हैं लोगों की, बहुत हेल्प भी करते हैं. बिल्कुल. और बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो उनको जानते हैं, तो बोलते हैं उनका दिल बहुत बड़ा है. Hello and welcome. You're watching us on Bollywood Live Z Media. This is Gorika and today I am joined by a legendary personality जो सिर्फ सिंगर नहीं है बल्कि एक स्टोरी टेलर भी है. इनके गानों पे हमने ग्रूव किया है. हाँ, आई नो हम थोड़ा सा रोए भी हैं, लेकिन इन्हीं के गानों के जो लिरिक्स हैं उन्होंने हमें जो जीवन जीने का असली मतलब सिखाया है. मोहित चौहान सर, प्लीज वेलकम टू आवर चैनल. Thank you. हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू एंड विद योर सॉन्ग मेरी आवाज आपने जी. you have become the voice of the voiceless. जी. I जी. was going through the comments and कितना प्यार मिल रहा है. आपने कितनी शिद्दत और प्यार के साथ ये गाना बनाया है. हमें वो सुन के पता लग रहा है. We actually got goosebumps when we heard. So जी. what has been the vision like? What struck you to make this song? It all started from when the first verdict came out, to remove the dogs by force from the streets, and I felt a lot of pain in my heart for the voiceless. Yes. And it came from that empathy and also from a sense of responsibility. As humans we are responsible for them. True that. Or so that's how this idea came about. And after the second verdict also, things didn't seem that they were going to improve much. So that's when we decided that I decided that it'd be nice if I can sing a song for about the thing. And Pratna was really kind to give me some beautiful lyrics for the song. And तेरी इस दुनिया में ज़रा सा हक, हम ज़रा सा हक तो रखते हैं, माना के बेजुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं. And those two lines set the tone for the song. And I've been sharing my life with animals for many years now. And I feed about more than 400 animals on the street. Wow. Regularly. And we've got a team that does that. Also taking care of the medicals, for the sterilization, that all that stuff. Rescues बहुत सारे आते हैं, उनका इलाज करते हैं हम लोग. और बहुत सारे रेस्क्यूज हमारे घर में रहते हैं as part of our family. Wow. So and I was born in the hills, and I was lived amongst nature. And so मेरा हमेशा से कनेक्शन रहा है एनिमल्स के साथ, फॉरेस्ट के साथ, रिवर्स के साथ. So when this thing happened, it pained me a lot, and I thought, like you said, to become the voice of the voiceless. क्योंकि जो भी बातचीत हो रही है, जो भी बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं, उसमें कॉन्वर्सेशन में उनकी बात कोई नहीं सुन रहा. बिल्कुल. जिनके बारे में बात हो रही है, who live in really hard conditions, or so that's where it came from. Also, see, collaboration with wife. Were there any creative differences as well? Because तब आपको गाने बनाने का pressure and साथ वाला ऐसे कोई नाराज ना हो जाए, so that is also a pressure. So how is the collaboration like? Was it smooth? Yeah, it was smooth. Yeah. Because we're both crazy animal lovers. Yeah. और जैसा उन्होंने ये लिखा ना, तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि पहला ही ड्राफ्ट उन्होंने जो लिखा, उसमें ये सब चीज़ें एकदम खूबसूरती से आ गई. और एक आध कोई लफ्ज़ कहीं पर ऊपर नीचे किया होगा, लेकिन ओवरऑल इट वाज लाइक वी वर बोथ agreeing to the way it was coming about. So that was it. And फिर हमने उसका एक AI से वीडियो बनाया. और मुंबई में गाना रिकॉर्ड किया. एंड फिर उसको 20 तारीख को रिलीज हुआ है. अभी खाली 4 दिन हुए हैं, 4-5 दिन. And the response has been really crazy. Yeah, and even I have few comments with me. Somebody has written, "What a beautiful song! I couldn't stop crying while watching this video. God bless you for bringing their voice." Another has commented that God has blessed you with such remarkable talent, and he is still young, and his voice is still sparkling. Real legends stand for the right causes, no matter how big or powerful the other side is. Supreme Court, please hear this.
So I mean, Yeah. such powerful comment So section beautiful. में लोग लिख रहे हैं and you know directly relating to it and they're deeply connected. Also coming to the AI part, AI की तो लोग मदद ले रहे हैं for all the good things, but जैसे अभी किशोर कुमार जी का जो गाना है उन्होंने सैयारा AI से generate करके बनाया गया है. So what is your take on AI? I mean, ये लोगों की job खा भी सकता है if we talk about musicians. देखिए, अगर एआई को आपका इंटेंट क्या है और आपके एथिक्स क्या हैं, अगर आप उस लाइन के अंदर एआई को इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल Yeah. to support your creativity or your whatever you're doing, then it's good, you know. It's just like any other instrument or any other application that you have. Yeah. लेकिन आप उसको अनएथिकली इस्तेमाल करें विदाउट समबडीज कंसेंट, यू नो, और किसी की इजाज़त लिए बिना आप उसकी आइडेंटिटी, उसका चेहरा या उसका आवाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो Can it be a threat? हाँ, आई एम श्योर उसके अगेंस्ट कानून भी कुछ ना कुछ आएगा. बहुत सारे लोगों ने कोर्ट जाके अपना प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है, भाई मेरा आइडेंटिटी, मेरा आवाज़ सब हाँ, प्रोटेक्टेड हाँ. रहेगा. हाँ, पर्सनैलिटी राइट जो होते हैं. Yeah. सो अदरवाइज अब जैसे इसका एआई से हमने वीडियो बनाया, Hmm. अब वो एआई सपोज हम नहीं इस्तेमाल करते, रियल में ऐसा वीडियो बनाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Yeah. एंड वो कैसे शूट करते, कहाँ शूट करते, Hmm. कौन उसमें एनिमल्स लाते. अब जैसे उसमें वो मदर डॉग है, उसके पप्स हैं छोटे छोटे, अब वो आदमी लाए, उनको चलाए, वैसा मतलब पूरा. Yeah. सो और एनिमेशन हैज द सेम Yeah, इम्पैक्ट, यू नो. animation for animation you can मतलब totally. एनिमेशन कैन मेक यू क्राई, मेक यू लाफ, यू नो, लाइक क्रेजी, बिकॉज वो है तो एक्टर्स ही वो, Yeah. लेकिन दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय एआई. Hmm. लेकिन उनका हर मूवमेंट, उनका हर चीज़ जो है वो बिलीवेबल है एकदम. Right. So you know, we thought it was perfectly valid, you know, to use a new technology Yeah. to get the message across. Yeah. और जब वो गाने के साथ जो वो विजुअल मिलकर आते हैं, तो that creates a movie like effect, you know. You listen to the song, the soundtrack, and there are visuals happening in front of you telling the story. Hmm. तो and the response has been really crazy. और उससे ये एक बात तो साफ हो गई है कि नहीं तो क्या होता था कि आर्गुमेंट हो रहा है, डिबेट हो रहा है, टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है, कहीं सोशल मीडिया कुछ बोलते हैं, कई लोग चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं कुछ, बोलना भी चाहते हैं, पर नहीं लेकिन बोलते. लेकिन इससे ये क्वांटिफाई हो गया कि मिलियंस ऑफ पीपल, जैसे यूट्यूब पे 5 मिलियन के करीब. Spotify it has हाँ, won Spotify it went to 20. number 1. Yeah, It number went to one. number 1 on Spotify on the latest love tunes, you know. Yeah. और उसमें सारी लेटेस्ट फिल्म्स के गाने हैं, 150 गाने हैं उसमें. जी. सो दिस सॉन्ग बीट ऑल दोज फिल्म सॉन्ग्स Yeah. जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं और पूरा फिल्म है मतलब. एंड दिस इज लाइक अ सिंपल सॉन्ग फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स, यू नो, Yeah. पर उसमें इमोशन स्ट्रांग है. एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ इट, यू नो, टू मेक पीपल फील. तो उससे क्वांटिफाई हो गया कि मिलियंस ऑफ पीपल विल सपोर्ट यू इन समथिंग लाइक दिस, because millions of people feel compassion Yeah. and empathy and kindness, you know, they have that thing in their heart. और ऐसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो they can make life better for street animals, you know, or which is really important. Also Rockstar की एक लाइन है कि टूटे दिल से संगीत निकलता है. So is it really true? दिल जब टूटा होगा तभी संगीत अंदर से निकलेगा. और ऐसे भी लोग कहते हैं कि संगीत आमद है. It comes from within. So what is your take on that? मेरा ओपिनियन ये रहता है कि आप में एम्पैथी अगर होती है तो आप खुद को दूसरे के शूज़ में अगर डालेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं. अगर कोई आदमी परेशान है, एज एन आर्टिस्ट यू कैन इमेजिन यार कि अगर मैं वहाँ होता तो मुझे कैसा लगता. Hmm. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू ब्रिंग इमोशन इनटू अ सॉन्ग, यू नो. Yeah. और चाहे वो किसी भी तरीके का गाना हो, यू डोंट नेसेसरली हैव टू गो थ्रू द सेम सिचुएशन. कि अगर मेरे को कभी ये सिचुएशन नहीं हुई तो मैं ये गाना ही नहीं बना सकता, ऐसा नहीं होता. Right. बट योर इमेजिनेशन टेक्स यू देयर, यू नो, मेक्स यू फील दैट थिंग. और उसी का नतीजा ये गाना है. और उनका दर्द, किसी का दर्द समझना जो है Hmm. वो बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है. जस्ट हैव टू हैव कंपैशन इन योर हार्ट. True. एंड आई थिंक एवरी हार्ट हैज़ कंपैशन. वो लोग किसी रीज़न से दूसरों के लिए नहीं दिखाते, लेकिन घर वालों के लिए तो दिखाते हैं, Hmm. अपने बच्चों के लिए दिखाते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए दिखाते हैं. तो है तो सब में. तो उसको अनलीश करने का, उसको अनलॉक करने का ज़रूरत है. और हमारा जो संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी जो भारतीयता है, उसमें कंपैशन, करुणा भाव जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल Right. प्रोसेस, यू नो. अच्छा कर्म करना, अच्छा कर्म आप करोगे तो ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, आपको काम आता है. बिल्कुल अच्छा फर्क कर्म, मिलता ही है. True that. अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, वो आपकी मदद करते हैं कहीं ना कहीं. जब आप फंस जाओगे किसी दिन मुश्किल में, वो आपका अच्छा कर्म ही आपको मुश्किलात से निकालता है या उसको हल्का करता है. बिल्कुल.
तो वो हम बचपन से सीखते आए हैं। गाँव में, घर में जब भी खाना बनता है, गाँव में मेरे बनता था खाना तो गाय की रोटी पहले निकालते थे, डॉग की रोटी अलग निकलेगी, चिड़ियों के लिए अलग निकलेगा, फिर उसके बाद घर वालों के लिए घर वालों सबके के रोटी अलग और सब खाना खाइए, फिर डॉग को रोटी मिलेगी, गाय को रोटी, सबको। तो ऐसा क्यों है? वो कंपैशन ही है ना, यू नो। ऐसे तो किसी की तरह परवाह मत करो आप। जब सड़क पे कोई चोट लग जाती है किसी को, लोग रुकते हैं, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, 2 लोग रुक के मदद करते हैं, बिल्कुल। सब लोग बोलते हैं कितने अच्छे आदमी हैं, देखो इज़ अ नोबल पीपल, यू नो, गॉट डाउन, स्टॉप देयर कार, उन्होंने उनकी मदद करी, कितने अच्छा है, अच्छी बात करी। तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि दैट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, यू नो, टू एम्पैथाइज़, टू हेल्प, यू नो, द नीडी, यू नो। तो वॉइसलेस की हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम जो है, ये हमने ही क्रिएट करी हुई है, बिल्कुल। यू नो। And also, so there's a fan question. People want to know the making of Sayyara. The song had touched hearts and it had made people, you know, break down into tears. So, how has the making of Sayyara been? Yeah, oh, that's a beautiful song, you know। और वो समीर सेन साहब के बेटे हैं, जी। उन्होंने वो गाना बनाया और उसको सलमान खान साहब ने उसको बहुत सुंदर तरीके से उन पे फिल्माया गया, you know, and जी। he's a superstar, you know, and Exactly. So he it's his knows how to birthday, sing a no? song, huh? It's his 60th birthday. His 60th and- birthday Yeah. tomorrow, you know. So I just pray to God that, you know, he blesses him with good health and he keeps making blockbuster films for us. We all love him, you know, and वो मदद भी करते हैं लोगों की, बहुत हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल। और बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो उनको जानते हैं, तो बोलते हैं उनका दिल बहुत बड़ा है और उसमें वो दिखते सख्त हैं वैसे कभी-कभी, पर उनके दिल में दर्द भी और प्यार बहुत रहता है। So, how was your first meeting with him like? I met him, I think, at a premiere after Sayyara. Yeah. So, yeah, that was the time. I went up to him and thanked him for the song. Yeah. But he's a great guy, you But know. you've done 3 to 4 songs together. Then I And did Bajrangi Bhaijaan, as I did well, another the song. chicken song. The chicken song. Yeah. Yeah. So one New Year message you have for the people who are watching us, for the fans, for the well-wishers who are showering love to this song and also to you. जी। What message do you have? तो आप मेरी आवाज़ जो गाना है उसको सुनिएगा, उसको शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा लोगों से कर सकते हैं, कि इस गाने में जो कंपैशन का, वॉइसलेस की वॉइस जो आपसे कह रही है, कंपैशन के लिए, एम्पैथी के लिए, काइंडनेस के लिए, उसको आप मैसेज को फैलाइएगा, बिकॉज़ दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप उसको फैलाइएगा और मेरे गीतों को आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबको सुखी रखे और आप सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। But with the music part. आपकी आवाज में मेरी आवाज। तो ये इसके 2 लाइनें गा दूं जी, बिल्कुल। मेरी आवाज की। तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं कि माना बेजुबां है हम, धड़कता दिल तो रखते हैं। Wow, lovely. Thank you so much, sir, for Thank the you very time. much. Thank you. you.